Yes, students, good afternoon. In the last session, I have started your chapter crop production and management. In this chapter, we have studied about food. Why do we eat food? Why the food is a basic necessity for life. Earlier, people are known as food gatherers and they become food producers. And we also studied about agriculture. Agriculture is an applied science that deals with the mass production of crop plants and animals यूज़फुल टू ह्यूमन बींग्स. एग्रीकल्चर एक अप्लाइड साइंस है जो डील करता है मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स और एनिमल्स से जो हमारे लिए ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल है. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. प्लांट्स of the same kind grown at one place on a large scale is called crop. तो एक जैसे प्लांट्स को अगर हम एक ही प्लेस पे ग्रो कर देते हैं तो उसको हम प्लांट्स ना कह के क्रॉप कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर ऑफ व्हीट. तो अगर हमने किसी फील्ड में व्हीट के ही प्लांट्स ग्रो किए हैं, दैट मीन्स इट इज़ व्हीट क्रॉप. द प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट इज कॉल्ड क्रॉप प्रोड्यूस. तो जो कल्टिवेटेड प्लांट्स हैं इनका जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसको हम क्रॉप प्रोड्यूस बोलते हैं. जहाँ पर हमने इन क्रॉप्स को सो किया है या कल्टिवेट कर रहे हैं हम इन्हें, वी कैन कॉल दैट लैंड एज एग्रीकल्चरल लैंड. सो सम क्रॉप प्लांट्स ग्रोन इन इंडिया आर cereals, wheat, rice, maize, bajra and barley, pulses, gram, pea, bean, moong, vegetables, cabbage, cauliflower, brinjal, fruits, mango, apple, pear, guava, spices, cardamom, black pepper, fiber crops, cotton, jute and hemp. Plantation crops are there. Tea, coffee, rubber, coconut are known as plantation crops. Then sugar crops are there, sugar cane and sugar beet. Then oil crops are there, groundnut, mustard and castor. Medicinal crops are also there, tulsi, asparagus and neem. Timber is also there, teak, shisham and pine. So these are here the some types of crops and examples. Now horticulture is what? Horticulture is means hortus means garden and culture means cultivation. So horticulture is a branch of agriculture that deals with the production of vegetables, fruits and ornamental decorative plants से जो डील करेगा vegetables या fruits जिसमें हम produce करेंगे. that branch of agriculture is known as horticulture. India is a very vast country, बहुत बड़ी country है India. A rich variety of crops is grown in different parts of the country. हम बहुत सारी crops grow करते हैं, अलग अलग parts of country में अलग अलग crops grow करते हैं क्योंकि जो हर जगह की climatic conditions है, humidity है, temperature है, they are different. So जो temperature है, rainfall है, humidity है, temperature है, they are different. They vary from one region to another. Despite this diversity, दो broad cropping patterns identify किए गए हैं. They are kharif crops and rabi crops. Kharif crops are those crops which are sown in rainy season. जिनको crops को हम sow करेंगे rainy season में, ठीक है, that crops are known as kharif crops. जो kharif crops है तो हम इसको beginning of monsoon season में sow करेंगे, जून जुलाई season में, and they are harvested at the end of the monsoon. monsoon season के end पे हम इसे harvest कर लेते हैं, जो हमारा produce है उसे cut कर लेते हैं. सितंबर अक्टूबर के टाइम पे हम इसे cut करते हैं, harvest करते हैं. kharif crop जो है it depend on monsoon rain for growth के लिए ये डिपेंड करता है मानसून रेन पे. खारिफ क्रॉप्स राइस, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खारिफ क्रॉप्स. इनको हम खारिफ क्रॉप्स बोलते हैं. राइस, मेज, राइस की जो हमारी क्रॉप है इसको हम पैडी बोलते हैं, ठीक है. अगर हमने ग्रो किया हुआ है फील्ड में राइस तो उसको राइस ना बोल के हम पैडी बोलते हैं. राइस, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खारिफ क्रॉप्स. Then rabi crops are there. The crops that are sown in winter season are called rabi crops. Rabi crops are sown at the beginning of winter season. इन्हें हम सो करते हैं विंटर सीजन में. विंटर सीजन में इन्हें हम सो करते हैं, इन्हें हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं. रबी क्रॉप्स हम बिगनिंग ऑफ विंटर में सो करेंगे अक्टूबर नवंबर में, एंड दे आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल. रबी क्रॉप डज नॉट डिपेंड ऑन मानसून रेन फॉर ग्रोथ. अपनी ग्रोथ के लिए ये
मानसून सीज़न पे डिपेंड नहीं करते हैं बिकॉज दे डोंट नीड मच वाटर एज़ कम्पेयर टू वीट। राइस जो है इट डिपेंड्स ऑन मानसून रेन फॉर ग्रोथ क्योंकि इट नीड्स मोर वाटर। राइस जो है क्रॉप इट नीड्स मोर वाटर। कॉटन जो है, जो हमारी खारिफ क्रॉप्स हैं, दे नीड मोर वाटर देन rabi crops, we can say. Rabi crop do not depend on monsoon rain for growth. Wheat, gram, pea, mustard and linseed are rabi crops. ठीक है, तो wheat, gram, pea, mustard, linseed ये हमारे रबी क्रॉप्स रहते हैं। नाउ अभी हमने देख लिया कि जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न्स है ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो फार्मर है जब वो बिफोर सोइंग द सीड्स वो लैंड पे क्या करता है, आफ्टर सोइंग सीड्स वो क्या करता है। ठीक है, तो ये सारी प्रैक्टिसेस जो इसमें हम स्टडी करेंगे दैट आर नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। Agricultural practices are activities in a particular sequence undertaken by farmers over a period of time to cultivate a good crop. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं एक सीक्वेंस में जो फार्मर्स करते हैं एक टाइम में, जिससे कि क्रॉप जो हो हमारी क्रॉप यील्ड अच्छी रहे। ठीक है, अनदर थिंग आई वांट टू से हेयर इज़ रबी क्रॉप्स के रिगार्डिंग कि अभी मैंने आपको ये बताया कि जो रबी क्रॉप्स हैं दे आर सोन एट द बिगनिंग ऑफ विंटर सीजन एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल। जो हार्वेस्टिंग के टाइम पे अप्रैल में आप सबको पता होगा बैसाखी आती है। बैसाखी इज़ ऑल्सो द हार्वेस्टेड फेस्टिवल। जो बैसाखी है ये हमें यही बताते हैं कि जो वीट है इट इज़ ये पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो गया है और अब हम इसे कट कर सकते हैं। सो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है ये। सम अदर हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये मेन बैसाखी जो है ये पंजाब, यूपी इधर सेलिब्रेट किया जाता है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर देयर। इसको मैं इस तरह से शो करती हूँ स्टूडेंट। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हमारा फर्स्ट जो स्टेप है इट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें हम प्लॉ करते हैं, लेवल करते हैं सॉइल को। देन सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, फिर हम सीड्स को सेलेक्ट करते हैं, हेल्दी सीड्स को सेलेक्ट करते हैं, देन सो करते हैं। देन रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड ऑन करते हैं वेदर दे आर ऑर्गेनिक। अगर ऑर्गेनिक है तो मैन्योरिंग बोलते हैं। अगर केमिकली हम केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड कर रहे हैं तो फर्टिलाइजर्स के थ्रू भी हम रिप्लेनिश कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स को। इसको हम आगे ही स्टडी करेंगे डिटेल में। देन इरिगेशन इज़ देयर, फिर हम वाटर करते हैं प्लांट्स को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। क्रॉप प्रोटेक्शन, फिर हम उसको जो क्रॉप है हमारी उसको प्रोटेक्ट करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे। एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग मेन पॉइंट इज़ देयर स्टोरेज, फिर हमें उसे प्रॉपरली स्टोर करना है सो दैट इट कैन नॉट बी ईटन बाय रैट्स, इंसेक्ट्स और इट कैन नॉट बी destroyed by microorganisms. So let's start this.